रात को ये ख़त्म हुई, दोपहर में 1-1:30 बजे ये ख़त्म हुए और तीसरे दिन ये ख़त्म हुए। 1 मई को ये हुए, 15 को ये। 2 भाई बचे हैं, 4 भाई खत्म, चारों देखो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The print is here at a village nestled around 10 to 15 kilometers away from Lucknow city. This village has witnessed a massive surge in COVID-19 cases in the second wave of the pandemic. The house that the print is standing in right now lost as many as 8 family members, 4 brothers of the same family, their mother, 2 sisters, in this second wave of COVID-19. Just 2 days before, family members here conducted the Tervi, a funeral ceremony that is conducted after the death of family members. This entire family lost these 8 members of their family within a span of 20 to 25 days. The 6-bedroom house in Himalaya village, which was full of life and laughter, now has only emptiness, sorrow and grief. It is as if these ancestral walls are also mourning. 5 photos of the deceased family members sit on a table in the hall, smoke from the diyas and agarbattis hitting up the room. It all started on 7th April when 27-year-old Kunwar Pratap Singh complained of breathlessness, pain and fever. What followed after that is one family member dying every 3rd day. He was admitted to a hospital after his oxygen level dropped. In the days that followed, his uncle Vijay Kumar Yadav, father Vinod Kumar Yadav, uncle Nirankar Singh Yadav and Satya Prakash Yadav were all hospitalized. पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद फिर मुझे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। आपकी तबीयत कब खराब हुई थी? करीब 7-8 अप्रैल को। 7-8 अप्रैल को जी। हाँ, फिर मुझे एडमिट कराना पड़ा। जी। ऑक्सीजन लेवल 80 पहुँच गया था। 80 पहुँच गया। सांस लेने में दिक्कत ये सब था, तो उसके बाद फिर मैं एडमिट हो गया तो ऑक्सीजन लगा। 4-5 दिन मैं वहाँ रहा, बाकी फिर धीरे धीरे फिर सभी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब होने लगी और उनकी भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, तो सबको एडमिट कराना पड़ा। धीरे एक एक करके सभी एडमिट हो गए। 4 लोग, मुझे इंक्लूड करके 5 लोग। दादी की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उनका एक ही दिन तबीयत ख़राब हुआ और उनको सांस लेने में दिक्कत और वो डेथ कर गई। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मेरे सबसे छोटे चाचा जो यहाँ पे खेती करते थे, निरंकार यादव, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, 50 तक पहुँच गया था। फिर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी हॉस्पिटल में, तो फिर उनको हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया था, तो उनका डेथ हो गया। The first death in the family was of Kunwar's Bua, 56-year-old Mithilesh Yadav, on 22nd April and was taken to her in-laws' house in another village, Ishapur, by her sons. 3 days later, on 25th April, Kunwar's 42-year-old uncle Nirankar Yadav and his dadi, 80-year-old Kamla Devi, succumbed to the virus, just a day after her health deteriorated. On 27th April, his aunt Shail Yadav also died. Barely 2 days later, his father Vinod died, followed by his uncle Vijay on 1st May. On 11th May, Roop Rani, his bari maa, expired, and 4 days later, on 15th May, Kunwar's youngest uncle, 38-year-old Satya Prakash Yadav, who lives behind a 4-year-old daughter, also died. The family frantically kept looking for beds and oxygen amid the peak of the second wave, and in most cases, it was too late. Satya Prakash Yadav was recovering until his lungs were damaged and he too succumbed to it. एम्बुलेंस की ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, आधा घंटा बचा था। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि आधे घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग आनंद फानन में उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराए। फिर रात में फिर उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर कहीं नहीं खाली था, पूरे लखनऊ भर में हम लोगों ने ट्राई किया, अपोलो से लेके मेदांता तक, कहीं वेंटिलेटर आईसीयू कोई भी खाली नहीं था। फिर एक हेवन हॉस्पिटल है, वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल हुआ। फिर रात में ही हम लोग 4 बजे वेंटिलेटर पे गए, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल रिकवर ही नहीं करा, 30 पहुँच गया था। तो
फिर उनके वहीं पे एक्सपायर हो गए वो। और मेरे सबसे छोटे चाचा की लड़की है 4 साल की, वो तो अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया उसने। जी, तो अभी यहाँ पे कोई आया था गवर्नमेंट से, कोई डीएम वगैरह कोई आया था आप लोगों से बातचीत करने, पूछने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट से कोई नहीं आया अभी तक, इतना हो गया। लेकिन एक बार आए थे, एसडीएम शायद आए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी सैनिटाइजेशन भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो वो बोले थे 2 घंटे में सैनिटाइजेशन कराएंगे, और आज तक नहीं आए। कब आए थे वो, अप्रैल में? नहीं, मई में आए थे। गाँव में लगभग कितने कोविड के केसेस होंगे? गांव में 50%। Current SDM Vikas Singh said that sanitization was done in the village and the house after the then SDM Shubhe Singh visited. After the reporters contacted senior government officials, SDM Vikas paid a visit to the family on Thursday and assured them help. ये मेरी सास है, ये मंझले देवर हैं, और इनके बाद एक और थे, उसके बाद ये हैं, इनके बाद एक और हैं, 2 लोग जिंदा बचे हैं, 4 लोग, चारों भाई खत्म हुए। सबसे छोटे ये थे। रात को ये खत्म हुई, दोपहर में 1-1:30 बजे ये खत्म हुए, और तीसरे दिन ये खत्म हुए, चौथे दिन उनके 25 को ये दोनों हुए, 28 को ये हुए, 1 मई को ये हुए, 15 को ये। अब बताओ हम लोग क्या करें? ये देखो सब बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ाई की दिक्कत आ रही, कमाने वाला कोई नहीं है। हम तो सिर्फ अकेले हैं, बच्चे नहीं, कौन हमको कमा के खिलाएगा? इतना बड़ा घर है, इसमें 6 लोगों का हिस्सा है, एक कमरा सबके पास है, और कमाने वाले तो चले गए। थोड़ी बहुत खेती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेते थे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम लोगों को आगे बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बच्चों को पढ़ाना, खिलाना, और आगे उनका भविष्य बर्बाद हो गया। इसके लिए जो है आप लोगों को कुछ मदद हो सके। नहीं तो ज़िंदगी तो हम लोगों की बर्बाद हो ही चुकी है। 15-15 दिन गांव से, परिवार से खाना बन के आया है, और यहाँ जो है इतनी बड़ी वो थी ना, सैनिटाइजर हुआ, सबसे जो है गुहार लगा थी, कोई नहीं। 1 महीने के बाद सैनिटाइजर हुआ, जब सब खत्म हो गए तब। कब हुआ था सैनिटाइजिंग? अरे जब सब खत्म हो गए उसके 1 महीने बाद हुआ था, 1 महीने 25-20 दिन के बाद हुआ था। जो पैसा सब लोगों के पास था, जो भी, वो सब इनके प्राइवेट में पहले करवाया गया, तो सब लोगों ने जमा, आज 50,000 जमा करो, आज 40,000 जमा करो, आज 70,000, कि भाई बच जाएं। टोली खाली हो गई आपकी? सब, किसी के पास कुछ नहीं बचा है भाई, कोई कमाई नहीं, तो 2 लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था भाई, खेती बाड़ी वाले थे। और जो है ये भी, इनके पास भी जो कुछ था, ये इस बच्चे के पास इन्होंने सब लगा दिया कि मेरे पापा बच जाएं, किसी तरह भी बच जाएं, और तो सब आ गए, लेकिन तब भी नहीं बचे हैं। वो देखो इनकी, इसकी बहन है, इसकी भी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। जी, मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, इनके पापा बीघे 1.5 बीघे खेती थी, वही करते थे, इधर उधर अपना बटाई ले लेते थे। अब मेरी कितने छोटे बच्चे हैं? अभी फर्स्ट ईयर में आया है छोटा वाला बच्चा, और बड़ा वाला हैदराबाद में पढ़ रहा। अब उसकी जो है हम लोग सोच रहे हैं कैसे इसकी पढ़ाई पूरी होगी, कैसे छोटे वाले बच्चे की पूरी होगी पढ़ाई। वही सरकार की तरफ कम से कम बच्चों की फीस ही माफ़ कर दी जाए, तो हम लोग को थोड़ा तो अपना खाना रहेगा तो खा लेंगे। Local residents of Himalaya said that almost half the villagers had COVID-19 symptoms at some point during the second wave. While only 10-20 actually got themselves tested, others remained in home isolation and did not undergo any test. आधा गांव पॉजिटिव रहा, बाकी दिक्कतें आती गई, और हमारे घर ही मान लीजिए 8 लोग ये तो एक्सपायर हुए, उसके अलावा 2-3 लोग और ख़त्म हुए गांव में, बगल में 8-10 लोग ख़त्म हो गए गांव में। 10-20 लोगों को बिल्कुल खुल गया, और जितने डरते थे वो जो है छुपा के रख के बताया नहीं, तो 50-60 लोगों के इस तरीके से हुआ। अब जैसे 1 महीना 15 दिन हम भी पड़े रहे, लेकिन बुखार किसी से बताते नहीं थे कि जो है एडमिट करी है, डॉक्टर दवाई देगा नहीं, वो हम मार डरी हैं जानबूझ के। उसके बाद नीम की पत्ती और जो है बबूल की छाली, यही सब दुनिया भर की चीज़ें पिया की हैं। और ये जो है ये गांव वाले डॉक्टरों से जो है टिकिया ले खावा के हैं, कहीं पैटामेसिन कहते हैं, डोल कहते हैं, यही खावा के हैं। यहाँ कोई देखे तक आज तक नहीं आवा। अब जो है जो 2-4 दिन से रोजीना मीडिया वाले खाली आते हैं, और कोई नहीं आता है, कोई नहीं आ रहा। ना एक दिन छिड़काव भवा, ना कोई आया, कोई अधिकारी
और विधायक कोई तो नहीं आया। खाली अब 10 दिन से मीडिया वाले रोज दिन भर में 5 बार 10 बार आते हैं। अब हम लोग रोज वही नया करे। 8 लोगों को एक दिन में 2 लोगों को फूंके हैं। बताते शर्म लगती है। हम लोगों के दिल से पूछो क्या बीत रहा है। 8 दिन हम लोग जो है खाना नहीं खाए। बच्चे तड़प के जैसे पानी से मछली निकालो ऐसे हम लोग तड़पे हैं। लेकिन आज तक कोई पूछा नहीं कि जो है कहाँ बस कहाँ है। वोट के टाइम पे आते हैं। वोट के टाइम पे दादा तुम्हारे ऊपर हम जो है अगरबत्ती सुलगाएंगे। The 8 deaths in this family is a reflection of what the COVID-19 pandemic has devastated in Uttar Pradesh. As we spoke to family members here, they have repeatedly said that who is going to earn now for them? Who is going to feed their children? Who is going to pay for their education here? With Praveen Jain, this is Bismita Skin reporting for The Print in Lucknow, Uttar Pradesh.